Okay. So I'll just go recap. So yesterday we learned about why early dinner is good for health. What is our internal healing Jivan Shakti or Pran Shakti? We learn about the Asgar juice detail, why it's called a super detox juice. Then we discuss about the 5 a.m. Vermouth waking up, what is the benefit, and one ball and one grain concept. And then one more thing we learned earlier, starting with the gratitude. So, and then 7, 8, 9 rules. So these 7 points we studied, we gone through. And then I asked about, I given the detail about our 21 days course and 3 months club. And we discuss about how much you're spending per month on our medication. So, and that, and what are the benefit of going together? What is the benefit if you are working in a group? So these things we discuss yesterday, and we discuss what is the 21 days training, what you will going to get in 21 days training, and whatever you are getting is only 10%. Whatever discussing here in 21 days training, we have a hand holding session, and we will give the detail about the each and everything. So you will in a good position to go ahead with the healthy life. So these are the details we discussed, and we discussed that how much we are charging. So we told that we are charging only 6,250 for this course, almost 3 month hand-holding course. And we have discussed about timeline. So today I'll discuss some interesting facts, interesting things, which is a very important for your health, which is very common things the peoples are discussing, but nobody is following. So I'm going to discuss about the fasting. I'm going to discuss about juice feasting or juice fasting. Then I'm going to discuss about relationship which impact our health, wealth, and everything. And then some exercises, which is if you can start following from the day one, you will get benefit immediately. And last is the state creation. State creation means how you can adopt a new habit or new things in your regular habit or regular work. So these 5 things we will discuss. And there's one more things, our laughter yoga we'll do today also. So, but Dr. Deepak, actually, I'm a member of his club, and we are getting very good benefit. If you have any type of a stress, you go with the laughter yoga. It's online available, but we'll do today also for 5 minutes. So after that, you will be stress free. So, let's start. We are starting now. So I'll discuss first about the fasting. So intermittent fasting, everybody is learning nowadays, as everybody is discussing about these things. If you want to lose weight, you want to a good health, you have to do intermittent fasting. What is intermittent fasting? Intermittent fasting means there is a gap, a long gap between two foods. So they have come with the fancy word, this intermittent fasting. But I told you already, if we are following our 7 p.m. 7 p.m. dinner concept, it is automatic you are doing the intermittent fasting. So this is from our ancient age, everybody is following this one. Okay, even if you can tell about if people are who is keeping roja, if now sir, they are also doing the intermediate fasting for completely 1 month, from morning 4 to evening 5. So this type are a habit we will have from the day from ancient time, but it's a new fancy word we are using and people are attracting. So I have written here the intermittent fasting. It is not required to do something extra for this. If you are taking dinner at 7 p.m., you are automatically doing the intermittent fasting. So these things I'm not going to much discuss because this is my regular thing. Second, I'm going to discuss about fasting. Why fasting is required? Why fasting is required if you are overweight or if you have in good health also. Fasting is the one of the best detox which you can do by yourself, and you will get a tremendous benefit
because of this fasting. So fasting means I'm not only talking about 24-hour fasting or 12-hour fasting. I'm talking about a long fasting. Do you know when a story was there when Vivekananda and Mahatma Gandhi, if they want to take some decision, they are going with the fasting of 24-hour fasting. Then only they will take the decision, because after fasting there is there is a clear mind. They are the thinking power is improved. So fasting is one of the best things what we are given by the uh, our ancient people or whoever, that you will get a very good benefit. So if who is not doing the fasting till date, we have a process to how to adopt this fasting. I'm regularly doing 72-hour fastings with water. I'm not doing without water, but I'm doing with water 72-hour fasting. So this is my regular things. Every 3 months, I'm doing 72-hour fasting. If I can do 96 also, but I'm 72 is I'm feeling okay, then it's okay, I'm leaving. So in my group, some people are doing 116, 119 hours also. So this is it's a very interesting thing. Once if you get the benefit, if you start, it's like a habit. It's like a, what you call, it's like a, uh, if you once you test this, the benefit, you want to do every time. So how we can start fasting? There is a process. It's a process we are telling is the meal reduction process. Means you have to start with your normal meal, then 2 meal, 1 meal, and 0 meal. So this is a process. It is almost 10 days process. If you come with us, we will discuss how to do this. But this is the process of 3 meal, 2 meal, and 1 meal, 0 meal process. But in fasting, we are not asking you to go without water. That is also possible if you can able to do that. But we are doing with the water. Okay, and we are telling as a super water, which we are making for this particular fasting with some saffron, some rock salt, and something like that. We mix and we are taking regularly on basis for next 22 or 48, how much hour you want. You start with intermediate what you are doing, and then you can go up to the 72 hours or 96 hours. It's all upon you. I am doing every 3 months for 72 hours fasting. That is my regular exercise, regular thing. Okay, so that last is a very easy. It looks very tough. People are thinking that how I can, मेरे को भूख लग जाएगा, मैं खा कैसे पाऊंगा, मुझे तो हर 5 मिनट पे भूख लगती है, मेरे से कैसे हो पाएगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये रेगुलर है, ये सब सब बोलते हैं कि यार मुझे तो भूख। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी है। और एक बार आप जब फास्टिंग करना शुरू करेंगे तो एक प्रोसेस है, 24 आवर्स की फास्टिंग के बाद कीटोन्स डेवलप होते हैं, वो आपके पूरे माइंड को क्लियर करते हैं। तो वो कीटोनेसिस जो है, अगर जब आप जाएंगे, मैं डिटेल में हमारे कोर्स में बताते हैं हम कि कैसे ये आपको बेनिफिट करता है, कैसे आपके माइंड को क्लियर करता है, कैसे आपके ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। तो एक पूरा प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, नॉट लाइक समथिंग और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि स्टार्टिंग सबको लगता है कि अरे मैं भूखा नहीं रह सकता यार, मैं तो 3 घंटा भी खा नहीं सकता, बिना खाए नहीं रह सकता। बट इट्स अ वेरी इजी थिंग्स, यू कैन डू वेरी इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, और आप बहुत ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था। तो ये सब कोई करता है या सब कोई बताता है, पर कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। एंड दैट इज अ हैंड होल्डिंग प्रोसेस। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है। नेक्स्ट है, कुछ लोग रियली शुरू में प्रॉब्लम होता है, यार नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, तो हम उनको रिकमेंड करता है कि ठीक है तुम स्टार्ट जूस फेस्टिंग से करो या फास्टिंग से करो। व्हाट इज जूस फास्टिंग? जूस इज नॉट फ्रॉम फ्रूट्स, जूस इज फ्रॉम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल मतलब टोमेटो, कुकुम्बर, ग्रीन लीव्स, स्मूथी, कैबेज, गर्ड्स, ऑल टाइप ऑफ गार्ड। सो इसमें क्या होता है कि आप जो जूसर लेते हैं, कोल्ड कोल्ड प्रेस जूसर आपको मिल जाएगा, या आप इजीली आप चाहें तो मिक्सी में भी कहीं पे भी उसको डाल के
उसका आप वो जूस निकाल के, जैसे टोमेटो को आप डालेंगे वो बहुत ही जूसी होता है, जैसे ही आप कोल्ड जूसर में डालेंगे वो उसका जूस निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप जूस निकालेंगे, तो अगर आप जूसर पे निकालते हैं नॉर्मल जूसर पे, तो हमेशा स्लो में निकालना है ताकि वो ओवरहीट ना हो सके। और अगर आपके पास कोल्ड प्रेस जूस है तो दैट इज बेस्ट। और जब आप उसका जूस निकालेंगे, तो उस जूस को आप यूज करना है। तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका है, उसको यूज करने का तरीका है कि आप स्टार्टिंग करें हाफ डे से। मीन्स आप आप आइदर डिनर में कंप्लीट जूस ले लें, मतलब एक बार आपने लंच ले लिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं लेंगे, केवल आप ये जूस ही लेंगे, टोमेटो कुकुम्बर जो भी है। या फिर आप फर्स्ट हाफ लंच, आप डिनर तक कुछ ना लें, केवल ये जूस लें। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बहुत अच्छा स्क्रबर है, बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है आपके बॉडी को। और आप इसमें जो भी जूस, उसमें लेमन, जिंजर, ब्लैक पेपर, रॉक साल्ट डाल के आप इसको इजीली पी सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। और आप अगर वीकली वंस करते हैं, हाफ डे भी, तो यू विल गेट द वेरी गुड बेनिफिट। इसको फुल डे भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है जो मैंने बताया। डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, और ये आपको एक क्लियर माइंड देता है, और ये आपको एक नेक्स्ट लेवल के लिए लीड करता है, जो होता है नॉर्मल फास्टिंग के लिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बारे में भी अगर आप, हमारा कंप्लीट डिटेल है कि आपको, और बहुत इजी और आसान है। एक और चीज है, वो है स्मूथी, ग्रीन स्मूथी बनाने के लिए। तो ग्रीन स्मूथी हम बोलते हैं कि हमारा ग्रीन स्मूथी जो है वो पालक, राजगीरा, घुंगूरा, ये जो भी मिलता है, उसको आप मिक्सी में पीस के आपको डायरेक्ट पी सकते हैं। मीन्स वो जो उसको, उसका रस नहीं निकालना है या उसका जूस नहीं निकालना है, उसको डायरेक्ट आप मिक्सी में पीस के और डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लीजिए, स्मूथ, एकदम स्मूथ उसको ग्राइंड करके। तो वो होता है स्मूदी, और वो भी आप ले सकते हैं, डेट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और एज गॉड जूस जो मैंने बताया वो आपको लेना ही है रेगुलर, एवरी डे, डे वन से। मैंने कल टास्क नहीं दिया था, पर मैं चाहता हूँ अगर अभी जो भी जुड़े रहेंगे और फ्यूचर में भी, आप प्लीज कुछ दिन तक मॉर्निंग में आप अपना एसगार्ड जूस का अगर लेना शुरू किए दिए हैं तो डालिए। मेरे हिसाब से सब बहुत बहुत बेनिफिशियल है। ओके, सो ये दो पॉइंट्स के बाद एक तीसरा पॉइंट जो आता है, जिसके लिए आप बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करना, जो सब लोग बोलते हैं आफ्टरवर्ड्स। But people are complaining, I don't have time, I have office, I can't go outside. So we have planned to, we have some way out for to do all those things. ऐसा नहीं, complain आप नहीं कर सकते हर समय। तो एक एक बेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं जिसको सुपर वार्म अप एक्सरसाइज। वो सुपर वार्म अप एक्सरसाइज में क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ, मैं वीडियो पे आता हूँ, मैं बताता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर विल कम बैक। सो आई थिंक आई एम विजिबल completely, correct? Hello? Yes, you are. Okay. So warm up, super warm up exercise is nothing but just hitting yourself by your fist. So आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक अपना fist बना लीजिए, मुक्का बना लीजिए, and then you start beating yourself like this, wherever it's possible. Okay, and just start. So here, back, everywhere. If you have to hit everywhere, you just उसे, ये इसको हम बोलते हैं सुपर वार्म अप एक्सरसाइज। और स्पेशली यू हैव टू डू योर बैक साइड, just above your buttock, because there is a kidney is there backside. If you forcefully, if you can
press like this, or if you can hit like this, it will energize your boost your kidney and other organs. So it is actually you are just knocking your all the organs to a start. So this is the very good warm up exercise for your internal organs, and you can do anytime. There's no time फिक्स मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये कभी भी आप कर सकते हैं। सो ये एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी है आप कभी भी बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं। एंड देन आई विल गो हियर। ओके, नेक्स्ट होता है सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा क्या फैंसी नेम है ना, बहुत सारा। ये सुपर ब्रेन योगा कुछ नहीं है, जो हम बच्चों को जब स्कूल में जब छोटे थे तो उठक बैठक करते थे कान पकड़ के, दैट इज कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा। जब आप कान पकड़ के उठा बैठक करते हैं बैठ जस्ट, तो वो सुपर ब्रेन योगा है। जो जो हम शुरू में करते थे, पहले बच्चों को करते हैं, या वो अब हमें करना है। ये आपको करने से ये 8 या 10 बार, हार्डली 1 मिनट लगता है। अगर आप करेंगे तो आप कभी भी, आपका किसी भी स्टेज में आप कर सकते, ये भी किसी वक्त कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई नहीं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आप कभी भी खाना खाने के 1 आवर 45 मिनट्स के बाद ही करना है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? योर बेनिफिट इज, आपका इमीडिएट इफेक्ट से आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, अगर आप शुगर आपका है तो। और दूसरा बेनिफिट होता है आपका डाइजेशन फास्ट होता है। थर्ड मैं डिस्कस करता हूँ चेयर सूर्य नमस्कार। ये एक पूरा प्रोसेस है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। चेयर सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड थिंग्स, इज डेवलप्ड बाय वन इंडियन ओनली। सो सूर्य नमस्कार के का चेयर वर्जन है, जहाँ पीपल कैन नॉट वॉक, कैन नॉट, देयर इज सम इशू विद देयर वॉकिंग या खड़े होने में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जब खासकर ओल्ड एज के लिए, या फिर ऑफिस में अगर आप करना चाहें तो इमीडिएटली कर सकते हैं। that also, if you can come out, we will teach that also. Okay, normal jogging we are telling always, it's a regular, सबको पता है। एंटी ग्रेविटी ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। जनरली क्या होता है, ये बेसिकली हम डायबिटीज वालों को या बीपी वालों को बताते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब 1 घंटे आप खाना खाते हैं, उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद आपका शुगर शूट अप करता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस वक्त आपको सीढ़ी को 100 एटलीस्ट फॉर 2 फ्लोर, आपको 2 फ्लोर और 3 फ्लोर आपको चढ़ना है और उतरना है एटलीस्ट 2 बार। दैट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। इस करने से आपका शुगर लेवल इमीडिएट डाउन होता है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका एक्चुअली मील जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उस वक्त आप उसको सीधा डाउन करते हैं। उसको बोलते हैं एंटी ग्रेविटी। इसमें मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम क्लाइम करते हैं, तो आपका शुगर लेवल डाउन होता है। 6th होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज। इट इज लाइक अ सेम, आपको उठक बैठक टाइप ही है, बट यू हैव टू डू सम हैंड एक्सरसाइज, लाइक if you can say like this, 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 this. This is called nitric oxide. You are just opening away your nitric oxide like this. So if you are doing 10 times like this, 10 times like this, or 10 times like this, so your functionality or regular sugar level will come down with some values. Why I'm talking about sugar level only? Because I was sufferer from diabetes, so I did all those things. So that's why my experience on that one. लाइंग डाउन साइकिलिंग जो बच्चे करते हैं सो के, छोटे बच्चे या हम भी बचपन में करते थे, तो वो भी एक बहुत मजेदार है। अगर आप घर में हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल से एक्सरसाइजेस हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी ट्रेमेंडस बेनिफिट विथ इमीडिएट इफेक्ट्स, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आप यू कैन सी देयर इज अ चेंजेस। आपका ब्लड शुगर कम हो रहा है, आपका डाइजेशन बेटर हो रहा है। सो ये सब छोटे मोटे एक्सरसाइजेस हैं जो आप करके, और ये काफी पुराने हैं, हमारे एंशिएंट टाइम से भी चले आ रहे हैं, तो ये करके आप बेनिफिट पा सकते हैं। नेक्स्ट एंड इट इज द लास्ट फॉर टुडे, इट इज स्टैक क्रिएशन। मैं इसलिए बोलता हूँ इसको स्टैक क्रिएशन, मतलब अभी मैंने आपको बोला कि यू स्टार्ट टेकिंग एसगर्ट जूस,
प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में आपको जो हर एवरीबडी वो रहता है, एकदम जोश में रहता है, ठीक है यार, दे कैन रेगुलरली दे कैन टेक दैट वन, बट कुछ दिन के बाद आफ्टर 1 वीक इफ यू कैन डू 7 days यू कैन डू फॉर नेक्स्ट 15 days ऑल्सो, और 1 month ऑल्सो, बट फर्स्ट 7 days में ही वो चेंज होता है। तो इसके लिए हम हमेशा स्टैकअप कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। स्टैकअप कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि आप उसका एक टाइम फिक्स करें, ऐसा नहीं कभी भी लेना है। जैसे हम, मैंने बोला जैसे एसगर्ड जूस ने एग्जांपल दिया है कि आपको एसगर्ड जूस के लिए मैंने एक टाइम फिक्स किया कि मैं हमेशा एसगर्ड जूस जो है वो ब्रश के तुरंत बाद लूंगा, दैट इज माय स्टकअप और स्टैकअप। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा, या उसके बाद मैं 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, और आई विल रीड बुक। सो वो हम एक स्टैकअप करते हैं, अब हम एक रूटीन में डालते हैं कि हम क्या, पहले आपको क्या क्या हम करते हैं, और उसके बाद आप पहले वो बनाइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। दूसरा आपको बनाना है कि कहाँ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक अपने रूटीन में उसको एडजस्ट करते हैं, इफ यू स्टक अप समवेयर दे वेयर फिक्सिंग योर टाइम, इट्स इजी फॉर यू टू फॉलो अप, बिकॉज यू नो वेयर वी हैव टू डू। So it means like a discipline you have to do. So what I am telling you, अगर आज का मैं एक टास्क है जो आप पहले ये बनाएं अपने जर्नल्स में, जो आपके पास जर्नल है, कि आपका अभी रेगुलर हैबिट क्या है, कंप्लीटली आवर वाइज, मिनट वाइज। जैसे मैं 5 AM उठता हूँ, 5:15 आई एम रेडी फॉर द योगा, 5 after yoga 6 o'clock, after yoga 6 o'clock I'm taking this asgard juice, and 7 o'clock I'm start working other things and my office work, another thing I started. So this is the stuck up rule. Stack up I'm doing. So this is so this type of procedure you have to follow. तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि आप एक पहले स्टैक लिस्ट बनाइए कि अभी आप क्या करते हैं, और सेकेंड आप वो लिस्ट बनाइए कहाँ पे आप जूस लेना शुरू कर सकते हैं, किस जगह पे आप एक्सरसाइज करना कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन बताता है, और आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि हाँ भाई, इस टाइम को आई कैन डू, आई हैव, बिकॉज यू थिंक मल्टीपल थिंग्स एंड देन यू पुट दिस थिंग्स, सो यू नो कि कहाँ पे कर सकते हैं, और इट्स इजी फॉर यू टू डू दिस। सो ये स्टैक क्रिएशन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप इसे करते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर दिस थिंग्स, it's work for your job also, it's work for other things also. So stack creation is very much important. To do list जैसे करते हैं उसी टाइप का stack creation है, पर to do list डे वाइज है। ये कंप्लीट आपका एक हैबिट बिल्डअप है कि आपका हैबिट बिल्डअप क्या है। जैसे ब्रश करना, खाना खाना, सोना है, उसी तरह वो भी आपका लाइफ का पार्ट हो जाएगा। जो भी ये दो चीज है, लाइक एक्सरसाइज, जूसिंग, एसगर्ड जूस, ये सब। तो इसको करने के लिए, आपको हैबिट बनाने के लिए स्टैक क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, इफ यू कैन पुट इन चैट इन आवर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कि आपका क्या स्टैकअप है अभी और क्या आप चेंज करना चाहते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी अगर आप बना के डालते हैं तो। ओके, so okay, now one more point I want to discuss, that is relationship. Where what is the relationship discussion here? रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करना है? रिलेशनशिप नॉट ओनली विथ योर स्पाउस और योर फादर और मदर ओनली, रिलेशनशिप विथ एवरीवन। सो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू बी सबमिसिव एंड स्टार्ट रेडी टू फॉरगिव। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आज से 2 साल पहले आपको किसी के साथ किसी बात के लिए बातचीत हुआ हो, और वो बातचीत बंद हो गया हो, बिकॉज देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन, समथिंग एल्स, एंड यू आर ऑलवेज फीलिंग दैट उस बंदे ने मेरे से गलती की, उसने गलती किया है, और उसके कारण मैं उसको माफ नहीं कर सकता, या मैं उसके साथ आगे नहीं चल सकता है, एंड यू आर ओवर थिंकिंग दैट वन। एंड आपको टाइम वाइज, एवरी नॉट एवरी डे, बट हर 2 महीने पे, 3 महीने पे, आफ्टर 4 मंथ, 5 मंथ, यू दैट स्टार्ट पिंचिंग, अरे यार उसने गलत किया मेरे साथ, ये सही नहीं हुआ। बट वी डोंट नो द अदर साइड स्टोरी एवरी टाइम।
मे बी दे रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत नहीं हो सकते हैं, पर ये भी जरूरी है कि वो गलत क्यों हुए ये भी हम जानने की कोशिश नहीं करते। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यू आर फीलिंग बर्डन योर सेल्फ। आपको एक गिल्ट होता है या आपको एक प्रॉब्लम, हमेशा ये चीज होता है, वो आपको इम्पैक्ट करता है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप अपने रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको आप इमीडिएट इफेक्ट से क्लियर करें। आप उस लोड को, जो आप उस बर्डन को जो अपने ऊपर रखे हैं, आप उसको क्लियर कीजिए। कैसे क्लियर कर सकते हैं? यू जस्ट गो एंड स्पीक to that guy if they are there, if they are in your city, if they can possible to meet. Clear. Second, if it's not possible, you write a letter कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, शायद मेरी गलती होगी, शायद तुम्हारी गलती होती, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड विल गो अहेड। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ओके टेस्टेड पार्ट है। आप केवल लिख के दे रखिए या आप बोल के देखिए किसी को, इमीडिएट इफेक्ट से वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, आपको पता चलेगा और आप हल्का फील करेंगे। मैं इसके लिए एक टास्क भी देता हूँ, यू इफ यू आर नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू स्पीक, यू राइट अ लेटर टू देयर नेम, डोंट पोस्ट, डोंट डू एनीथिंग। अभी के टाइम में केवल आप एक लेटर लिखिए उनके लिए, जिनसे भी आपको, कोई भी हो सकते, फादर मदर दोस्त कोई भी, जिनसे आपको अभी लगता है कि आई कांट स्पीक टू देम, बहुत टाइम तक आप बात नहीं किए, खोजिए उनको, बात कीजिए और उनको आप एक लेटर अपने से अपने पर लिखिए, अपनी डायरी पे कि भाई दिस इज द थिंग्स आई एम थिंकिंग, शायद उस दिन जो हुआ वो तुम्हारा या मेरा किसी का भी गलती हो सकता है, but now I don't want to recall all this thing. I want to go ahead. Okay. So that if you write this thing, you will feel immediately uh, released, immediately बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, लाइट, आपको फील होगा कि यू आर इन अ गुड पोजीशन। So my thinking, you start doing this, you write a letter to all those guys, all those friends, relative, everyone to whom you are not talking, there is some miscommunication, तो आप करेंगे तो आपको सब, और इसका बेनिफिट ये होता है कि वंस यू आर रिलीव्ड, आपको कभी वो एक पिंच नहीं करता है और वो कभी भी आपको एक इम्पैक्ट नहीं डालता है आपके मेंटल स्टेटस पे, आपके हेल्थ स्टेटस पे। सो ये आपके रिलेशनशिप को डेवलप करने का तरीका है। दूसरा, आपका हेल्थ के लिए मैंने अभी बताया, इफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप ओके, देन वी विल डिस्कस, यू कैन एबल टू increase your wealth also, that is wealth also. Okay, that is a different parts, but for my things, I'm only talking that you will start working on your relationship. Second, the close relationship, if you can talk, I'm telling, don't for anything. I'm the sole earner. If I can tell only those things should happen in हाउस, तो इस टाइप का दिमाग में कभी रखना नहीं चाहिए, पॉसिबल नहीं है। यू आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आपका बच्चा आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में, सो बड़ों को कहाँ से करेंगे? तो स्टॉप फोर्सिंग एनीवन, the communication is only medium to convince someone if they can convince, otherwise there is no method. So stop forcing. If you start doing this, you will feel light, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि अरे यार मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन जब आपको ये लगेगा कि नहीं यार मैं किसी को बात नहीं मनवाना है, मुझे केवल उनको कन्विंस करना है, इफ दे आर कन्विंस देन ओके, सो यू विल फील लाइट, देयर इज नो देयर इज नो हार्ड फीलिंग, सो इट इज इजी फॉर यू टू गो अहेड। और भी बहुत टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं और हम इसके बारे में डिटेल अपने वर्कशॉप में और अपने जो एक्सरसाइज है और अपना जो क्लब है उसमें करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये 3 दिन के बूट कैंप के लिए हमने ये है जो भी है, वट एवर वी हैव गिवन इज ओनली द 10 से 20% है, बट आई होप दिस इज वेरी गुड फॉर यू एंड दिस विल वर्क फॉर यू। But if you know more about this type of things, if you want to uh, work with the group and if you want to
learn something extra and if you want a good health, सबसे बड़ा बात कि आपको मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जीना है, अगर आपको लगता है कि आप मेडिसिन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, then you come with us, we will work together. It's a mutual benefit. We will also get benefit and I'll also get benefit. Everybody will get benefits here, benefit. So मेरा कहना है कि अगर आप ये सब करते हैं तो अच्छा है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, we are starting in October our 21 days challenge or 21 days हेल्थ लाइफ ट्रेनिंग और 3 मंथ हेल्थ क्लब स्टार्टिंग। ये हेल्थ क्लब को हम हैप्पी क्लब भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको एक योगा एक्सरसाइज many things are we are doing. So if you can come across it, if you can join, you will get benefit. So and I told you yesterday also, our charge, our actual charge are 25,000 because we have associated Dr. Namrata also. They are time to time they are giving their feedback on your each and every one. They are giving 1-to-1 session. So ये सब कुल मिला के 25,000 के आसपास चार्जेस होते हैं, बट इट्स इन दिस बैच वी आर just starting with 6,250 only. And if anyone interested can join, the details are already in the chat. I will put in WhatsApp group. I'll put again, so you can join and you can start your healthy journey or medicine free journey easily, or and within a 21 days you will feel कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, and I guarantee in 3 months your medicine will be reduced to half, and within 6 months it will be become a zero if you practice the same thing. That is a challenge from my side, if you follow all those things, because I know, because I did these things. So I know I am right now on the zero medicine with HbA1c 6.1. So मुझे पता है जहां मैं 8 HbA1c से 6 पे हूँ, और जहां मैं 2 टाइम मेडिसिन लेता था, आज मैं सिंगल मेडिसिन भी नहीं लेता हूँ। तो मुझे पता है if you can follow this it will be helpful. And why it we can go ahead with the free of cost charges also, but चार्ज इसलिए देना होता है कि lot of other people are associated and it is a commitment for your side if you are paying something, because commitment के लिए आपको commitment देने के लिए भी ये देना जरूरी होता है। So that is my thing. So I hope आपको 3 दिन में मजा आया होगा और ज्यादा अच्छा लर्निंग हुआ होगा। और कुछ आपका फीडबैक है, यू कैन गिव मी योर फीडबैक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आई एम हियर फॉर अनदर 5 minutes. So if you can ask, or 7 minutes, then otherwise we'll close. Ishan, where are you based? I'm in Bangalore only. Oh, thank you. So do you have any in-person classes or anything? No, it's all online classes. Online. All online classes, and we are just providing all the inputs and everything on online only. Okay, all right. So this is the thing. I'll touch base with you separately for more details. Sure. Yep. Thank you. Thank you. Sure. Now, sir, if you have any question, you can ask. Otherwise, we'll close. क्वेश्चन तो नहीं है सर, अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. क्योंकि अभी जब देखिए अब डिजीज है, आदमी को पता जब चल चुका है कि उसका ठीक होना नहीं है दवाइयों से, है ना, फिर भी 5,000 6,000 कभी तो 10,000 से ज्यादा भी है ना खर्चा करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ना। Correct. हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, जितना भी बोले उतना तो खर्चा करना पड़ेगा, चाहे दूसरे जरूरियात को कट कर देंगे लेकिन मेडिसिन को कट नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात है, लेकिन अब जब यहाँ पे हम आपको उतनी गारंटीड बेनिफिट दे रहे हैं, एक नया लाइफस्टाइल बता रहे हैं, एक अच्छी आपको एक सुविधा बना के दे रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट रहेगा, आपकी हेल्थ बेनिफिट होगी, तो पैसे की तो बात ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना। 6,000 तो बहुत नॉमिनल है, आदमी जितना भी बोले उतना, जो बेनिफिट के आगे अगर उसको मेजर करेंगे
तो ये Yes, 6,000 तो कुछ भी नहीं है। correct, sir. हाँ, तो ऐसी मेरी सोच है। देखते हैं हाउ पीपल विल रिएक्ट टू ऑल दिस थिंग्स एंड कैसे काम आगे बढ़ेगा। Sure, मैं sure. भी कर रहा हूँ सर, मैं अपने तौर पे ट्राई कर ही रहा हूँ सब कुछ। लेट मी आल्सो जॉइन हैंड्स विद यू एंड सी हाउ बेस्ट वी कैन डू Sure, टुगेदर। sure, sure, sir. Thank you very much, sir. Thanks, thanks. थैंक्स। Thank you. Okay. Okay, so Thank you. I'll close now. If anything there, you can directly ask me in WhatsApp or you can call me. Thank you. Thank you very much for Thanks. Thank joining. you. Bye. Thank you. Thank you, Noy sir. Bye.